हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। व्यूअर्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट भगवती कॉलेज, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स भगवती कॉलेज मेरठ। बच्चों, मैंने अभी थोड़ी देर पहले चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ का जो हमारा इकोनॉमिक लॉ का जो सब्जेक्ट है, और उसमें मैंने 600 प्लस क्वेश्चंस की जो सीरीज स्टार्ट करी है इंग्लिश मीडियम में। तो उसमें मैंने अभी अभी यूनिट सेकंड के 40 क्वेश्चन हैं वो अपलोड किए हैं। कल मैंने 100 क्वेश्चन जो थे वो अपलोड किए थे यूनिट फर्स्ट के। ठीक है, तो आपने अगर ना देखे हो तो वो आप देख सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं ई कॉमर्स जो है आपका चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ का, तो उसमें यूनिट नंबर फर्स्ट जो है वो इंग्लिश मीडियम के मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर के आऊँ। ठीक है, हिंदी मीडियम में मैं काफ़ी क्वेश्चंस दे चुका हूँ, और अब इस वीडियो में काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन सर नहीं दिए हैं, तो अब मैं इंग्लिश मीडियम में अगले 10-12 दिन आपको मैं काफ़ी क्वेश्चंस अवेलेबल करवाऊंगा, और 6 के 6 सब्जेक्ट्स के मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगा। ठीक है, बाकी आपको जो भी कोई क्वेश्चंस की नीड हो, जिस भी किसी मैटर की हो, चाहे बीएड हो, एंट्रेंस हो आपका, या एनटीए नेट का हो, वैसे तो मैं अपनी तरफ से करा रहा हूँ, लेकिन जो है वो मैं आप मेरे को कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। नहीं तो मेरा फ़ोन नंबर है 8057185980, तो आप इस पर मुझे कॉल करके भी बता सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए डिस्कस करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, ई कॉमर्स हैज क्रिएटेड न्यू एनवायरमेंट इन बिजनेस ट्रांसैक्शंस यूजिंग। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, इंटरनेट। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज fill the blank, authenticate the source of information and guarantee the integrity and privacy of information. Option number C is correct, security mechanism. Question 3. Application of technology towards the automation of business transaction and workflow is dash perspectives of e-commerce. The correct option is option number A, business process. Question number 4. Technical standards of internet and for conducting e-commerce are option B is correct, universal standards. Question 5. E-commerce is available just about everywhere at all times, which means it is option C is correct, ubiquitous. Question number 6. Transportation foundation that enables the transmission of contact is option B is correct, information superhighway. Question 7. E-commerce is an emerging concept that describes the process of option D is correct, all of the above, means exchange of product, exchange of services, and C is exchange of information. So option D is correct, all of the above. Question 8. An electronic market is a network of interactions and relationship where option A is correct, payments are exchanged. Question 9. A document standard which when implemented acts as a common interface between two or more computer applications is option number B is correct, EDI. ठीक है, शॉर्ट में ईडीआई बोलते हैं, पूरा नाम होता है आपका इसका इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। क्वेश्चन 10. ईडीआई इज कॉमनली यूज्ड बाय बिग कंपनीज। ध्यान रखिएगा, ईडीआई जो है वो कॉमनली बिग कंपनीज ही यूज करती हैं। किसके लिए? फॉर ई कॉमर्स पर्पज लाइक ऑप्शन सी इज करेक्ट, सेंडिंग ऑर्डर टू वेयर हाउसेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11. इंटरनेट कॉमर्स इज अ सबसेट ऑफ ई कॉमर्स कवरिंग commercial activities like option D is correct, all of the above, means placing orders, transferring funds, and auctioning. Question number 12. Value chain describe the sequence of activities that a firm undertake to option C is correct, both A and B's, means develop products and create values. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13. अ कनेक्टेड series of organization resources and knowledge streams involved in the creation and delivery of value to end commerce is option B is correct, option B is correct,
इंटर ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू चेन. क्वेश्चन नंबर 14, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑफर्स potential benefits to organization as well as individuals due to its. So option D is correct. All of these means global nature, interactive nature, and C, low cost. Question number 15, buying and selling of goods and services is referred as. Option B is correct. Electronic market. Question number 16, an electronic market has dash where business interactions occur. Option B is correct. Internet work-based location. Question number 17, higher efficiency in EDI can be achieved by. Option C is correct. Sending and receiving EDI data in seconds. Question number 18, elimination of manual and duplicate entry reduces. Option B is correct. Errors. Question number 19, dash is the ability to deliver products, services, information और पेमेंट्स वाया नेटवर्क. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट है, कम्युनिकेशन. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20, ई कॉमर्स डील्स विद. जो ई कॉमर्स है वो देखिए वो मीडिया डाटा में भी डील करता है, वीडियोस में भी डील करता है और वेब पेजेस में भी डील करता है. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दिस. क्वेश्चन नंबर 21 बहुत इंपॉर्टेंट है. These activities transforms natural resources into a finished product that is delivered to the end customer. Option B is correct, supply chain. Question number 22, transfer of information from the buyer to the seller electronic is. So option C is correct, communication services. Question 23, it is the total amount and quality of information available to all market participants, consumers and merchants. Option B is correct, information density. Question number 24, the important benefits of e-commerce to organization is. Option D is correct, all of the above. Means again, it expands the marketplace to national and international markets. Option B, it supports business processing re-engineering efforts. And C is, it reduces the time between outlay of capital and the receipts of product and services. Then our answer is option D, all of the above. Question number 25, the benefit of e-commerce to consumers is true. Option D is correct, all of the above. Means provide them with more choices. B, facilitate competition will result in substantial discount. And C, to make relevant and detailed information available to customer. क्या क्वेश्चन नंबर 20 बहुत इंपॉर्टेंट है. ई बिजनेस रेफर्स, आजकल देखिए ई बिजनेस भी चल रहा है, तो दोनों ही इसमें ऑप्शन कवर्ड होते हैं आपके. फर्स्ट ऑप्शन इंफॉर्मेशन एक्सचेंज रिलेटेड टू बाइंग एंड सेलिंग, ये भी इसमें कवर्ड होता है. और ऑप्शन बी भी कवर्ड होता है, सर्विसेज customers and collaborating with business partners. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 27, द इम्पैक्ट ऑफ ई कॉमर्स टू बिजनेस इज डेट. ऑप्शन सी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी. मीन्स इट कैन ट्रांसफॉर्म द वे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर क्रिएटेड, सोल्ड एंड डिलीवर्ड टू कस्टमर. ये आप सब जानते हैं कि आजकल जो है सोल्ड होके कस्टमर पर डिलीवर हो जाता है उस प्रोडक्ट का, है ना. और इट कैन चेंज द वे इन विच द कंपनी वर्क्स विद इट्स पार्टनर्स. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी. क्वेश्चन नंबर 28, द वेल एस्टेब्लिश्ड बेनिफिट्स ऑफ एन ई कॉमर्स इज. देखिए तीनों ही इसमें जो ऑप्शन है आपके वो कवर्ड होते हैं, है ना. ऑल ऑफ दी अबव आंसर है. जैसे क्वालिटी भी इंप्रूव्ड होती है, कॉस्ट की सेविंग भी होती है और बेटर कस्टमर सर्विसेज भी होती है. तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, ऑल ऑफ दी अबव. क्वेश्चन नंबर 21, द कॉस्ट सेविंग स्टेम फ्रॉम. देखिए ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ऑल ऑफ दी अबव. एफिशिएंट कम्युनिकेशन भी होता है, क्विकर टर्न अराउंड भी होता है, क्लोजर एक्सेस टू मार्केट भी है. तो तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ऑल ऑफ दी अबव. क्वेश्चन नंबर 30, द बिजनेस कैन बी मेड मोर एफिशिएंट बाय. देखिए बोथ बी एंड सी, मतलब यूज ऑफ इंटरनेट और ऑटोमेशन ऑफ बिजनेस प्रोसेस. ठीक है.
क्वेश्चन नंबर 31, ई कॉमर्स अलाउज रिड्यूस्ड इन्वेंट्रीज एंड ओवरहेड बाय, देखिए इन्वेंट्रीज का दूसरा नाम स्टॉक भी होता है ना। तो ऑप्शन सी करेक्ट है इसमें, फैसिलिटेटिंग पुल टाइप सप्लाई चेन मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 32, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ई कॉमर्स रिड्यूसेस द टाइम बिटवीन, ऑप्शन बी इज करेक्ट, आउटले ऑफ कैपिटल एंड रिसीप्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, ई कॉमर्स प्रोवाइड्स कंज्यूमर विद लेस एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बाय, तो सही आंसर है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। तो जो ई कॉमर्स कंज्यूमर्स को सर्विसेज जो दे रहा है, कैसे, ए और बी मतलब अलाउइंग देम टू शॉप इन मैनी प्लेसेस, और ऑप्शन बी कंडक्टिंग क्विक कंपैरिजंस। क्वेश्चन नंबर 34, ई कॉमर्स फैसिलिटेट्स डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विस एट रिड्यूस कॉस्ट विच, ऑप्शन ए इज करेक्ट, इंक्रीजिंग इफेक्टिवनेस एंड इम्प्रूव क्वालिटी। देखिए ये बहुत सीधी सी बात है कि अगर किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी अगर कंपनी अच्छी नहीं बनाएगी तो वो प्रोडक्ट उसका ज़्यादा टाइम तक मार्केट में कंपटीशन में नहीं रह सकता। तो कंपनी को प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी तैयार करनी पड़ती है ना। क्वेश्चन नंबर 35, द इंपॉर्टेंट टेक्निकल लिमिटेशंस ऑफ ई कॉमर्स लाइज इन इट्स, तो देखिए ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव, मीन्स इनसफिशिएंट टेलीकम्युनिकेशन बैंडविड्थ, B, insufficient system security reliability etc, and C, difficulty is integrating the internet and e-commerce software with some existing application। ठीक है, तीनों ही ऑप्शन इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 36, ई-कॉमर्स इज अबाउट इंटीग्रेटिंग एक्सटर्नल कंपनी विद, ऑप्शन सी इज करेक्ट है, की ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल बिजनेस प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 37, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ई बिजनेस इज, देखिए तीनों ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कोलैबोरेटिव प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोक्योरमेंट एंड ऑर्डर मैनेजमेंट, और ऑपरेशन एंड लॉजिस्टिक्स। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 39, ई कॉमर्स इज बेनिफिशियल टू सोसाइटी बिकॉज इट्स, देखिए सोसाइटी के लिए जो भी फायदा है इसका, तो ऑप्शन बी करेक्ट है कि फैसिलिटेट्स डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विस एट रिड्यूस कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट जो होती है उस प्रोडक्ट की पब्लिक की सर्विस के लिए कम हो जाती है, लोगों को कम कॉस्ट पर वो प्रोडक्ट अवेलेबल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 40, द इम्प्रूव कस्टमर सर्विसेज टू क्लाइंट रिजल्ट इन, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, हायर सेटिस्फैक्शन एंड मोर सेल्स। ठीक है बच्चों, ये इस पार्ट में मैं आपको 40 क्वेश्चन से अवेलेबल करवा रहा हूं। इससे आगे के क्वेश्चन जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अवेलेबल करवाऊंगा। ठीक है बच्चों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थोड़ा मैंने कोशिश करी है कुछ अलग तरीके से वीडियो बनाने की इसमें, ताकि देखिए इसमें पिक्चर क्वालिटी थोड़ी सी ठीक आ रही है, और थोड़ा सा मैंने महसूस किया कि जो कुछ दिन पहले वीडियो बननी थी थोड़ा सा उसमें शाइनिंग कम थी, चमक थोड़ी सी कम थी, तो इसमें मैंने थोड़ा सा कोशिश ये करी है कि आपको जो है बेटर से बेटर क्वालिटी इसमें दे सकूं, और कुछ दिन बाद जो है मैं और इससे बेटर क्वालिटी आपको देने की कोशिश करूंगा। ठीक है बच्चों, इसमें आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि जो मैंने वीडियो आपको कल दी थी, यानी कि जो इंग्लिश में मैंने आपको पार्ट नंबर 16 दिया था आपको इकोनॉमिक लॉस का, वो आपको क्वालिटी ज़्यादा बेटर लग रही है, या इस तरीके से मैंने डबल कॉलम में जो आपको पेज दिया थोड़ा सा फॉन्ट साइज छोटा लग रहा है, या तो ये वाली क्वालिटी आपको बेटर लग रही है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जैसे आप बताएंगे उसके हिसाब से मैं वीडियो आप तक लेवल करवाऊंगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।